Just let me know once my screen is visible. Hello, my screen is visible. Yes, Ankur. Yes, Abdul. Yeah, sure. So the first thing is group by. Actually, what is happening in group by? In group by, if suppose that we have some keys, we have some primary key, okay, and it's repeating in our table, okay. It's no, it cannot repeat. Primary key cannot be repeat. Okay. So suppose that we have some column and that is coming multiple time in different rows. Okay. And we just want to know, uh, we just want to know what is the average value of that, or what is the sum of that, or any kind of what is the count of that. Then we use group by. Okay. So I'm just creating a table. I'm just creating a sample table here, and we will perform some questions on that so that you can understand what is group by. Okay. So just starting creating a, I'm just starting. I'm creating a table. Okay. Yes. So we are using table. We are using earlier we are using MySQL one. Okay. MySQL one. So again we will use MySQL one, the same schema. MySQL underscore one. I'm using the same schema. Okay. Under the same schema, the table will be. Okay. So I'm just create create table. Table name is sales. Okay. And what kind of column I want. Okay. So I just want in sales. I just want column. First of all, there is ID. ID will be by default. You have to put ID. Okay. And this is the integer, and I'm putting it auto increment. Also, I'm making it primary key. Okay. I'm making it primary key. Okay. So this is my ID. First, I'm creating ID. Now, first I'm creating ID. Second will be second will be the product. What kind of product it is? What kind of product it is? So product can be varchar. Product can be varchar, and it can be 32. Okay. It can be varchar, and I'm just putting it 32. Okay. Again, I'm this is your ID. This is your product. Now I'm just putting one more category. What is the category? Category again. Category will be varchar. Same. Okay. I'm again putting the category varchar. Now again we have price. Okay. Today I'm taking price as decimal, and I'm just I just want to keep it most of the 10 digit, and it should be to two decimal. Okay. Point after point there can be only two value. Okay. So this is price in decimal, and then we have quantity. We have quantity. Quantity can be integer. Okay. Quantity can be an integer, and again sales sales date, and I just want it in. Okay. This is our so table have your ID product
category, price, quantity, sales, ID, product, category, price, quantity, and sales date. Okay. Now I'm just creating this table. Okay. You guys can also create the same table along with, so that you don't need to waste your time when I'm doing the questions. Okay, so just do this along with me. Okay, create this table. Hope you understand the var, decimal, integer, date, integer, ID, integer, auto increment, primary key. Uh, I don't need to insert ID value here. Okay, it will be automatically incremented. Okay, so it will be automatic increment. Now I'm just creating the table. Okay, but this is the table has been created. I have to insert the values. Okay, so insert insert into sales. Okay, and you can also mention your columns here. Okay, you can mention your columns here, so you don't need to mention your ID here. Just mention only product. Okay, you just want to do your product, your category, your price. Okay, and okay, just never mind. The quantity spelling is a bit wrong. Okay, so just keep it as it is. Quantity and sales date. This is your sales date. Okay, in sales date, in this we have to put our values. Okay, I just want to put values here. Okay, so what values will be there? The first value will be, I'm just saying, no, I have phones. I have phone. Okay, the category is, the phone category is electronics. Category is electronics. Then the category, then price. Price in dollar. Okay, so 559 dot something something 99. Usually people ask to pay like this. How many? 10. And sales date. When it was, when it's 1.4, should be inside the course, and April and 0. Okay, so this is your sales date. Okay. The second one is, again, the second one is your laptop. Okay. Again, this comes under the electronics, come under the electronics, electronics. Okay. What is the price? Price is 1299.99. Okay. Quantity, quantity is 5. Okay. And the date. Date is, suppose that the date is 2nd April. Okay. Again, I'm putting some more information here. Laptop, electronics, first thing. Okay. Third one is chair. Third one is chair and furniture. This comes under furniture. Okay. Then it's price. Price is $149. Okay. And quantity is 20. Again, the date is, suppose that the date is, so the date is 3 April. Okay. Now again, what I have TV. TV again comes under electronics. Under electronics. And what is the price? Price is TV price is 899.90.
Again, quantity is 8 and date is 2024 dash April 4. Okay. Again, we have table. Table again comes under furniture. Furniture. Actually, it's important in group by. The spelling should be same. Furniture. Value $149. Quantity 15 and date. Date is 2024-04-05. Okay. Again, the last is headphones. Again, headphones comes under electronics. Under electronics. Electronics. Price is $99 and total 12. Quantity was 12 and I just want to accept it. That is for accept it. Okay. आप एक बार देख लो इसमें कहीं नाम इधर उधर ना हो, ये नाम जरूरी है कि सेम रहे तभी ग्रुप बाय हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है सेम पेस्ट कर देता हूँ, कहीं भी स्पेलिंग का कहीं कुछ होगा तो सही हो जाएगा। फर्नीचर में भी मैं यही काम करता हूँ, ठीक है। बाकी सारे चीज ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल मैंने बनाया जो जिसका नाम था सेल्स। अभी मैं यहाँ पे अगर सेल्स को देखता हूँ, अभी मैंने इसको रन नहीं किया, अभी मैंने रन नहीं किया है। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। बस मैंने जो भी कॉलम्स बना रखे हैं वो आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, प्राइस है, quantity है और सेल्स डेट है, ठीक है। मुझे बस वही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद से अगर मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं फिल कर देता हूँ तो मुझे क्या होगा, एक टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है। ये 6 रोज इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं जब दोबारा इसको रन करूंगा, जब मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो मुझे इसमें सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप लोगों ने सभी लोगों ने कर लिया कि नहीं कर लिया, ये सारा चीज कर लिया कि नहीं आप सभी लोगों ने? हेलो, ये टेबल आप अंकुर सभी लोगों ने क्रिएट हाँ अंकुर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे नल क्यों दिखा रहा है वैल्यूज एंटर होने के बाद भी? कहाँ पे? ये सबसे लास्ट वाला ना? लास्ट। हाँ सबसे लास्ट वाला ये देखो, ये जो टेबल है, आप जो टेबल देख रहे हो ना, ये हाँ। टेबल एडिटेबल है, ठीक है। ओके अगर अगर कोई ऐसी टेबल है जो एडिट नहीं की जा सकती है, अगर मैं कहूँ इसके देखो, इससे क्या है ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। उसके बाद से मैंने क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिया, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, मेरा एडिटेबल बन गया है। इसके पहले जो टेबल्स थे वो एडिटेबल नहीं थे, आप ओके देखो। ओके ओके ठीक है इसके पहले ठीक जो है। टेबल था वो एडिटेबल नहीं था। अब क्या है, इसके अगर आपको कुछ फिल करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके फिल कर सकते हो, डबल क्लिक करो फिल कर लो, यहाँ डबल क्लिक करो फिल कर लो, ऐसे डबल क्लिक करके फिल कर सकते हो आप। ठीक है आईडी ऑटो इंक्रीमेंट में है तो आप फिल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ऐसे डबल क्लिक करके फिल अपने मैनुअली फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको फिल हाँ करना है तो एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर लो, ये बटन इसमें है जो इंसर्ट न्यू रो का। पहले वाले में जो हमने बनाया था ना टेबल, और अभी वाले टेबल में क्या कुछ हमने हाँ फर्क मतलब है, एंटर किया है जो मतलब एडिटेबल उसमें, मोड में चला गया? हाँ चला गया। जैसे कि इसमें मैंने जो मेरी आईडी थी उस आईडी को मैंने क्या किया है, प्राइमरी की बना दिया और ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया है। जब ऑटो इंक्रीमेंट हो गया इसका मतलब है कि उसमें और भी रिकॉर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी पहले क्या था, आपने फिक्स करके एक डाल दिया है, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड आप ऐड नहीं करना चाहते, ऑटो इंक्रीमेंट है, अब इसके में और रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ है कि आप एडिटेबल ये बन गया है। अब इसमें कुछ भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ से ऐड करना है ऐड कर लो, यहाँ डायरेक्ट पुट करके ऐड करना है यहाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ एक ऐड करके, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ ऐड होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक फर्नीचर में एक और ले लेता हूँ जिसका नाम है बेड, ठीक है। आगे कैटेगरी में ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी जो मेरी है
वो फर्नीचर की है। मैं प्राइस कहता हूँ, बेड की जो प्राइस होती है काफी अच्छी खासी होती है, तो मैं 2500 उसको दे देता हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी जो मैं कह देता हूँ केवल 2 ही क्वांटिटी कह देता हूँ, और सेल्स डेट जो है उसको 7 तारीख है। ठीक है, अब मैं इसको जब ऐसे करूंगा, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने का एक बटन आता है, आप अप्लाई करो यहाँ पे, और ये कहता है कि आप इंसर्ट कर सकते हो। ये आपको एक सिंटेक्स भी दे रहा है, आप देखो, आप जो लिखते हो वो सिंटेक्स यहाँ पे देता है। ये देख रहे हो आप, ये सेम सिंटेक्स इसने क्रिएट करके आपको दे भी दिया। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे एक कॉलम ऐड होके आ जाता है कि एक बेड है, फर्नीचर में जाता है, इसकी प्राइस इतनी है, ये क्वांटिटी इतनी है, और सेल्स डेट इसका। ये अंकुर अप्लाई बटन कहाँ से मिलेगा? ये रहा नीचे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें देखो जैसे कि क्या चीज है, कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हो, ऐड करना चाहते हो कुछ, ठीक है ना, जैसे मैं कुछ ऐड करना चाहता था। ठीक है, तो आप कभी भी कुछ ऐड करो ना, तो आपके पास एक तरीका होता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन का, स्टार्ट ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो आप क्या करोगे जब भी हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ देखो हमारे पास क्या होता है, जो भी हम ऐसी चीजें हैं जिनको हम अल्टर कर सकते हैं, जैसे ठीक है ना, हम कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट नहीं, कुछ इंसर्ट करना है, या हमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करते हो, स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखते हो। जैसे आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देते हो, तो इससे ये होता है कि आपको, आप क्या कर सकते हो, अब उसको, आपके पास एक फंक्शन है रोल बैक करने का। आपने स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखा, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, या जो भी किया, जो भी कोड लिखना है या सिंटेक्स, जो भी सिंटेक्स लिखना है, आप यहाँ पे अपने सिंटेक्स को लिखते हो, और बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया है, ठीक है, तो आप कमिट कर दो। अगर आपने सही किया तो कमिट कर दो, अदरवाइज आप उसको रोल बैक कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने सही कर रखा है तो आप कमिट कर दो, अदरवाइज रोल बैक कर दो। तो इससे क्या होता है कि कभी भी आप, कोई आपका टेबल ऐसा है जो प्रोडक्शन में पहले से काम में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें ट्रांजेक्शन एक क्रिएट कर लोगे, कि मैंने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर लिया। जैसे ही एक ट्रांजेक्शन हम क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो आपको एक एबिलिटी दे देता है कि आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप उसमें, आपके पास रोल बैक करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कहां कहां आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है ना, यूजुअली अंकुर आप एक होता है, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, एक होता है डीडीएल और एक होता है डीएमएल। ठीक है, डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन। हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक डीडीएल होता है, एक डीएमएल होता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, डीडीएल का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, और इसका जो मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं डेटा मैनु डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, ये हमारे पास दो चीजें होती हैं, डीडीएल होता है, डीएमएल होता है। जहां पे आप डेटा को डिफाइन करते हो, वहां पे आप रोल बैक नहीं कर सकते। जैसे आपने एक टेबल बनाया, आप उसको रोल बैक वापस नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है ना, जैसे अब उसके बाद से क्या होता है, जैसे अब डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, आप क्या करोगे, इंसर्ट और डिलीट दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। मैंने डिलीट किया है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, मैंने रोल बैक कर लिया। ठीक है, आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, एक हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रॉप टेबल। ठीक है, आपने अगर टेबल को ड्रॉप कर दिया है, तो वो आपने डिफाइन किया है कि मुझे टेबल को ड्रॉप कर देना है, वो पूरा टेबल ड्रॉप कर देगा, और आप उसको रोल बैक नहीं कर पाओगे। आपने टेबल ही डिलीट कर दी है, आप उसको रोल बैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने कुछ रोज डिलीट करना है, आप कुछ एल्टर, कॉलम का नाम एल्टर करना चाहते हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ रोज इंसर्ट करना चाहते हो, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो जहां पे डेटा मैनिपुलेशन की बात होती है, वहां पे हम रोल बैक कर सकते हैं। जहां डेटा मैनिपुलेशन नहीं है, जहां हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं,
वहां पे हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। मैंने दोनों सिनारियो आपको बता दिया है, ठीक है। ये चीजें एकदम से याद कर लेना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं कि मैं किसको रोल बैक कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता हूँ। तो याद करने का ये तरीका है, जहां डीएमएल आ गया, ठीक है, उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। जहां डीडीएल आ गया वहां रोल बैक नहीं होगा। डेफिनिशन, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम रोल बैक नहीं कर सकते। हम टेबल ड्रॉप कर रहे हैं, हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हम डेटा वहां पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ कॉलम्स ऐड कर दिया, कुछ कॉलम डिलीट कर दिया, कुछ रोज ऐड कर दिए, कुछ रोज डिलीट कर दिए। हम टेबल का नाम शायद नहीं चेंज होगा, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके की जो मैनिपुलेशन वाली चीजें होंगी, जहां पे हम कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहां पे हम रोल बैक कर सकते हैं, अदरवाइज हम रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि आप कब रोल बैक कर सकते हो, कब रोल बैक नहीं कर सकते हो, तो वहां पे, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, रोल बैक वाली, ठीक है। जैसे यहीं पे कोई एक, अगर आपको इंसर्ट करना हो, ठीक है ना, आपको एक और रोज इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक रोज और, जैसे यहाँ पे आप ऊपर बना रहे थे, जैसे ऊपर मैंने ये बनाया सारा, ठीक है ना, इसी तरीके से आप एक बनाओगे, ऐसे ही एक बनाओगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, एकदम सिंपल ऐसे इंसर्ट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे, और उसके बाद से यहाँ पे आप एक और प्रोडक्ट बना दोगे। पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे स्टार्ट, ठीक है ना। अब क्या करोगे, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लेना, एक और प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या, स्मार्ट वॉच नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ एक स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ठीक है। ये किस में आएगा, आप लोग बताओगे किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक है। इसकी प्राइस, स्मार्ट वॉच की प्राइस मान लेते हैं $100 के आसपास है, ठीक है। क्वांटिटी मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी 40 थी, ठीक है। और हम डेट मान लेते हैं कि ये भी हमारा जो 7 या 8 तारीख को, ठीक है ना। अब हमारे पास ये है। मैं क्या करता हूँ, मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया है, मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको इंसर्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना, इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टेबल को देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, मेरा क्या है, टेबल का नाम है मेरा सेल्स। मैं इस टेबल को देखूंगा, मुझे इस टेबल को देखना है, सिंपल, ठीक है ना। मैं इस टेबल को देखता हूँ, इस टेबल में आपने, मैंने बोला ना स्मार्ट वॉच आ गया है, स्मार्ट वॉच आ गया है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने 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 स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया था, यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरा सब कुछ सही है तो ही ये तो ही ये ऐड हो, अदरवाइज ये ऐड ना हो। मुझे लगता है कि गलत है, मुझे लगता है ये गलत है, मतलब है नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, मुझे ऐड नहीं करना, तो मुझे लगता है ये गलत है। मैं क्या करूंगा, मैं रोल बैक करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली रोल बैक लिखूंगा, और यहाँ पे अब मैंने रोल बैक कर दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मेरे पास कितने हैं, क्या क्या चीजें हैं। आप देखो, आप बताओगे यहाँ पे स्मार्ट वॉच है कि नहीं है। स्मार्ट वॉच यहाँ से हट गया है। आप यस। जो एंट्री कर रहे थे वो एंट्री नहीं रही, आपने रोल बैक कर लिया, वो एंट्री यहाँ पे अब नहीं है। समझ में आया। इसलिए इसलिए इसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल के अंदर ये आता है। आपको ये याद रखना होगा कि किस तरीके से हम रोल बैक करते हैं। ये बड़ा ही काम का चीज है। आप कभी भी अपने ऑफिस में जब प्रोडक्शन टेबल्स पे काम कर रहे होगे, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ भी ऐसा गलत ना करो, कुछ भी ऐसा बग ना डाल दो उसमें जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम बैठ जाए, ठीक है। तो आप प्रिकॉशनरी क्या करते हो, एक स्टार्ट ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आप, लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है, कहीं पे एंट्री आपने गलत डाल दी है, आपको ये नहीं कुछ और डालना चाहिए था, तो आप तुरंत रोल बैक कर लोगे। वो आपके टेबल को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। अभी तो मैंने रोल बैक कर दिया, मैं ये कॉलम बनाता हूँ और सेल्स में देखता हूँ कि मेरे पास ये सेल्स है कि नहीं, ठीक है ना। मेरे पास स्मार्ट वॉच आ गया है। अब मैं रोल बैक करने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं कमिट कर दूंगा उसको। मैं क्या करूंगा, उसको कमिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे रोल बैक नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं रोल बैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कमिट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ कमिट कर दिया है। अब मैं वापस सेल्स को जब देखूंगा, ठीक है, तो ये मेरा
परमानेंटली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे यहाँ पे रोल बैक करने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे रोल बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ वापस, अभी भी मेरा स्मार्ट वॉच है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कमिट कर दिया था, क्योंकि मैंने इसे कमिट कर दिया था, इसकी वजह से ये स्मार्ट वॉच आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीएमएन। और यहाँ पे हमारे पास कभी भी आपको लगता है कि मुझे मैंने जो भी एंट्री की है वो एंट्री गलत है, वहां पे मुझे कुछ और मॉडिफाई करना चाहिए था, कुछ और लिखना चाहिए था, तो आप रोल बैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने सब सही किया है तो आप उसे कमिट करो। ठीक है। अंकुर, हाँ जी। तो हम अगर कमिट कर देते हैं तो उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो, आपने परमानेंटली डाल दिया वहां पे, परमानेंट आप हो गया। फिर अच्छा। नहीं कर सकते। ठीक है ना, अच्छा। एक सेकंड आप मुझे और घुमा एक और एक बात अंकुर, ये जो हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये कितना मतलब स्टोर करता है ट्रांजैक्शंस, लाइक हम आज करते हैं कुछ, फिर कल हम इसको रोल बैक कर सकते हैं या ऐसा नहीं, सिर्फ आज ही कर सकते हैं? अगर कमिट नहीं किए हैं तो जब उसको रोल बैक कर एक सकते हैं। एक सेकंड देना, मेरी बैटरी लो है, अदरवाइज ये हाँ। चली जाएगी। एक मिनट देना आप मुझे। हेलो। हाँ जी। विश्वजीत, विश्वजीत, हाँ हाँ जब अंकुर। तक आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो, जब तक आपने रोल बैक या कमिट नहीं कर दिया है, वो ट्रांजैक्शन आपके टेबल में परमानेंट बैठेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ठीक है। ओके ओके। तो हाँ ठीक है। जब तक आप नहीं करते हो, आप भले उसको कर लो, लेकिन वो आप टेबल में इंसर्ट आपको दिख रहा है वहां पे, एक्टिव नहीं है। वो इफेक्टिव नहीं है, वो सिंपली आपको दिख रहा है वहां पे। वो तभी अच्छा। इफेक्टिव होगा जब आप उसको या तो बैक करोगे या कमिट करोगे। रोल बैक कर दोगे तो हट जाएगा वहां से, और कमिट कर दोगे तो परमानेंटली आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप इस ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हो तो आप ये मान के चलना कि वो उसकी वर्चुअल मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोर है, वो उसके परमानेंट मेमोरी में नहीं गया है। जैसे रैम में चीजें होती है ना, जब तक आपने ओपन करके रखा है तब तक आपको याद रखता है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे आप उसको क्लोज करते हो, जैसे अपना लैपटॉप शट डाउन करते हो, आपने जितना भी चीजें क्लोज ओपन किया था सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रैम में वो चीजें रहती ही नहीं है। ठीक है ना, उसी तरीके से इसमें भी है, उसने बस ये जान लिया है कि मुझे ये इंसर्ट करना है, आपको इस तरीके से वो दिख रहा है। ठीक है। आप जब कमिट और रोल बैक करोगे तभी वो परमानेंटली वहां पे दिखेगा या हट जाएगा। ठीक है। चाहे आप 5 दिन ले लो, चाहे 10 दिन ले लो, चाहे 1000 दिन ले लो। समझ में आया? अंकुर। तो ये हमारा कमिट और रोल बैक था। अरे यार, मैंने वहां लेके आया क्या?
हेलो, सभी लोग हो ना आप लोग? हेलो। हेलो अंकुर, हम हैं। यस बैटरी मेरी वो हो गई थी, मैंने ऑन नहीं किया था, अच्छा अच्छा। है ना? हाँ, इसकी वजह से हो गया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया रोल बैक वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, मैं स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ, मैं स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ, और स्क्रीन मैं वापस यहाँ शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, आ गया। स्क्रीन आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों को ये डीएमएल वगैरह तो मतलब होता ही होता है, ये एक्चुअली ना इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आप लोग को एक चीज चीज या मतलब एक अलग से एक पीडीएफ भी दे दूंगा, उस पीडीएफ के थ्रू आप ये सब देख सकोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, आप उसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से उसका आंसर देना होता है, क्या क्या आंसर देना होता है। ठीक है, माइस्क्ल पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना? तो अभी हम ग्रुप बाय की बात कर रहे थे कि हमारे पास अब क्या चीज आ गया है, ग्रुप बाय आ गया है। ठीक है, ग्रुप बाय में हम क्या करते हैं कि अब मैं कहूँ यहाँ पे कैटेगरी है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि अब देखो कुछ जगहों पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ जगहों पे क्या है फर्नीचर है। ठीक है, मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ढेर सारी चीजें बेची गई हैं, फोन भी बेचा गया है, लैपटॉप भी बेचा गया है, हेडफोन्स भी बेचे गए, स्मार्ट वॉच भी बेचे गए हैं, सारी चीजें बेची गई हैं, है ना? लेकिन ये सारे वैल्यूज अलग अलग लिखे हुए हैं, सारे वैल्यूज अलग अलग लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, कि इसमें मुझे चाहिए कि इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें चाहिए कि मैं किस तरीके से इन चीजों को देख सकता हूं यहाँ पे ग्रुप बाय करके। जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल सेल्स कितना था। ठीक है, अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास सेल्स टोटल कितना था मुझे नहीं पता है, कितना सेल्स है इस टेबल को देख के आप नहीं बता पाओगे अब जब तक उस पर कुछ फंक्शंस नहीं करते हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ग्रुप बाय करके चेक कर लेंगे कि हाँ मेरा सेल्स कितना था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। पर कैटेगरी पहला क्वेश्चन है कि पर कैटेगरी टोटल सेल्स हमारे पास कितना हुआ, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें 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 क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, क्योंकि हम कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा, कह रहा है पर कैटेगरी आपको क्या चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम, क्या चीज का, मुझे चाहिए कैटेगरी, मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। ठीक है, सम हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने पहले से बता रखा है। किस चीज का सम चाहिए हमें, मैं सम करूंगा, और मेरे पास क्या है, प्राइस है, मेरे पास प्राइस है इनटू जो क्वांटिटी है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी फील्ड नेम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, आप ध्यान देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। क्वांटिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी वही रह गई थी, तो आप जो है वही यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि उसको करेक्ट करने जा रहे हो, जो है आप उसको यूज करो। ठीक है, प्राइस, तो हमारे पास क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी है। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं कि मैं बात करूं ये मेरे फर्नीचर है। ठीक है, तो दो फर्नीचर बिका है और एक फर्नीचर का दाम 2500 था। ठीक है, तो टोटल सेल कितना हुआ, 2 × 2500, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल आपके 5000 का सेल हुआ इस फर्नीचर के बेड में। बेड जो है, बेड 5000 का बिका। लैपटॉप कितने का बिका, तो हम बोलेंगे 5 × 1299.99, तो लैपटॉप मेरा इतने का बिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेरा जो प्राइस हो गया ओवरऑल, जो उनको कॉस्ट, ओवरऑल जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ा या जो टोटल सेल हुआ, वो यही हुआ ना कि हम प्राइस में जब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल टोटल निकल के आ जाएगा। और ओवरऑल जितने भी हैं उन सबको अगर हम सम कर देंगे तो सारी वैल्यू निकल जाएगी, जिसमें मैंने उसका सम ले रखा है। ठीक है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम एलियाज, मैंने आपको बता रखा है पहले से, मैं एलियाज ले सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख ले, मैं टोटल सेल्स चाहता हूं, और कहाँ से, किससे, मेरे पास टेबल कौन सा है, मेरे पास टेबल जो है वो सेल्स का है, और मैं यहाँ पे ग्रुप बैक कर रहा हूँ, ग्रुप बैक कैटेगरी पे ग्रुप बैक कर दे रहा हूँ।
ठीक है ना। तो कैटेगरी पे मेरा ग्रुप बाय हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से। ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। हर एक हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, हर एक प्रोडक्ट का ओवरऑल जो प्राइस होगा वो सेल्स क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा। ये आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ओवरऑल जो कॉस्ट हुआ या ओवरऑल जो सेल हुआ है वो सिंपल यही हुआ कि कितनी क्वांटिटी आपने बेची और कितने और हर क्वांटिटी कितने रुपए की थी। तो उससे मुझे क्या होगा, टोटल सेल एक पर्टिकुलर का सेल मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे सेल को अगर मैं सम कर दूं, यहां से लेके जितने भी हैं इन सबको मैं सम कर दूं तो मुझे सबकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, ओवरऑल ऐसा सम नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को ग्रुप बैक कर देता हूँ। जब मैं कैटेगरी को ग्रुप बैक करूंगा तो फर्नीचर अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रन करके चेक करता हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखो आपके पास दो कैटेगरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की है और दूसरा फर्नीचर की है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में कितना सेल आ गया, आपका टोटल सेल्स 24,893 है, इतना आ गया। और फर्नीचर में कितना है, 10,248 आ गया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं करते, अगर आप ग्रुप बाय नहीं करते, ठीक है, तो आपको क्या, आपको ओवरऑल सेल्स मिल जाता। आपको ये कैटेगरी नहीं बनती कि फर्नीचर में कितना है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, आपको ये नहीं पता चलता। आपको ओवरऑल जो सेल्स है वो पता चल जाता। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए, इसलिए मैंने ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है। अगर ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो सारे जितने भी हमारे पास सेल हुए हैं उन सबका सम होके आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास, हमको कैटेगरी वाइज चाहिए था, इसलिए मैंने वहां पे ग्रुप बाय कर दिया, तो मुझे ये निकल के आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? आप एक बार फिर से बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, किसी को डाउट है तो। नहीं ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? संदीप आपको क्लियर हुआ? जस्टिन आपको क्लियर हुआ? हाँ जी अंकुर जी, क्लियर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ इजी है, मतलब एक हाँ जी। एक तो ना सीक्वल का जो सिंटेक्स होता है ना, वो लगता है जैसे कि आप इंग्लिश राइट कर रहे हो। ठीक है ना। उसमें बस थोड़े से वो कीवर्ड के थ्रू वो यूज किए जाते हैं। तो एक वो काफी सिंटेक्स होता है। अब सिंटेक्स के अलावा हमारे पास क्या रह चीज रह जाता है, सिंटेक्स के अलावा हमारे पास रह जाता है कि हम कितने उसको कैसे उस चीज को सोच सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये आपके लिए हर जगह एक तरीके से एप्लीकेबल, हर जगह है ये। अगर आप पांडास पे काम करते हो वहां पे भी एप्लीकेबल, यहाँ पे काम करते हो यहाँ पे भी applicable, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल्स निकल जाता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब मैं कहता हूँ अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो है मेरा कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सोल्ड सोल्ड पर कैटेगरी। आप देखो ओवरऑल ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे। अगर मैं कहूं कि ओवरऑल कितने प्रोडक्ट हैं हमारे, ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, तो आप यही काम करते हैं ना। आप, अगर मैं केवल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप क्या करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, काउंट लगाते हैं, सेलेक्ट काउंट लगाते हैं, यहाँ पे स्टार कर दो या उस प्रोडक्ट का नाम डाल दो, उस प्रोडक्ट का नाम डाल दो यहाँ पे। ठीक है। आप एक बार देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सेल्स है उस सेल्स पे कॉलम का नाम क्या है। ठीक है ना। एस लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे। फ्रॉम सेल्स, अगर मैं इतना लिखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, पता चल जाएगा। 8 प्रोडक्ट है मेरे पास ओवरऑल। वापस यहाँ पे जाओ और देखो मेरे पास 8 है कि नहीं है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो कोई प्रोडक्ट 2 बार है क्या? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक्चुअली 8 ही प्रोडक्ट है। ये आईडी नो आ गई है क्योंकि आपने बीच में डिलीट किया था, याद आ रहा है? बीच में हम लोगों ने डीएमएल पढ़ते हुए, बीच में डीएमएल करते हुए हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से एक रोज डिलीट कर दी, जिसकी वजह से वो 8 नंबर चला गया। ठीक है, ओवरऑल ये 8 ही है। आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। इसमें अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 9 है, 8 डिलीट हो गया क्योंकि आपने क्या किया था, ड्रॉप कर दिया था उसको।
आपने रोल बैक किया था, उस रोल बैक में वो हट गया वहां पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट कितने हैं आप देखो, इसका फायदा क्या है, आपको लग रहा था कि 9 प्रोडक्ट है, लेकिन जब आपने इसको रन किया तो उसने बता दिया नहीं आपके पास 8 ही प्रोडक्ट है, और आपने जब वैलिडेट किया तो आपको ये भी पता चलता है कि हाँ आपके पास 8 ही प्रोडक्ट है। समझ में आया? ओवरऑल हमारे पास 8 प्रोडक्ट है, ये निकल के आ गया। लेकिन मैं आप ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए, मैं ये ऐसे नहीं चाहता हूँ, मुझे कैटेगरी वाइज बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रोडक्ट थे और मेरे पास फर्नीचर में कितने प्रोडक्ट थे, मुझे ऐसे बताओ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं और उसमें कितने हैं, ये चीज मुझे बताओ। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, आप जो ऐसे कर रहे हो, इतना जो लिख रहे हो, ठीक है ना, सिंपल इसी को वापस लिखो, यहाँ पे स्टार लगा दो। स्टार लगा दोगे तो आपको रोज की बात हो जाएगी, ऐसे भी आप प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टार लगा के करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, ग्रुप बैक कर देना है यहीं पे, ग्रुप बैक क्या कर देना है, कैटेगरी पे, ठीक है ना। आपकी जो कैटेगरी है उस पर आप क्या करो, ग्रुप बैक करो, रन करो, ठीक है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे निकल के आ गया कि एक कैटेगरी में 5 है, दूसरे कैटेगरी में 3 है, लेकिन अगर आपको ना, आपको पता नहीं चला है कि किस कैटेगरी में क्या है, किस कैटेगरी में क्या है आपको पता नहीं चला है, इसलिए आप क्या करो, आप कैटेगरी को भी ले आओ। आप कॉलम जब सेलेक्ट करोगे तो कैटेगरी को भी जब लेके आओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ, कि कौन से कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, फर्नीचर में 3 है, आपको ये भी पता चलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को, ये चीज समझ में आया आप लोगों को, हाँ जी। खाना, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया कि आपके पास कैटेगरी वाइज कितना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इलियास यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, आप लिख लो, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट्स सब लिख दो, ठीक है ना, ठीक है, इलियास लगा दो। और जब ऐसे रन करोगे तो आपका क्या होगा कि अब वो लिख के आएगा कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, कैटेगरी कितनी है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपको यहाँ पे लिख के आ सकते हो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस कितना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ एवरेज प्राइस मेरी, कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस कितनी है, ठीक है ना, देखते हैं। अब क्या करोगे, सेलेक्ट फिर से कैटेगरी ले लो, कैटेगरी ले लोगे तो आपको ये रहेगा कि आप कैटेगरी देख सकते हो, ठीक है ना, कैटेगरी, फिर एवरेज किस चीज का, प्रोडक्ट का, नहीं, एवरेज आप किसका लोगे, हमेशा आप एवरेज किसका लेते हो, आप नंबर्स का एवरेज लेते हो, तो आप ये कहा जाएगा, आप प्राइस लेना चाहते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि आप कैटेगरी वाइज एवरेज प्राइस बताओ, तो एवरेज प्राइस कहाँ से, किसमें से, मैं सेल्स से बताऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस ग्रुप बाय लगा दूंगा, और ग्रुप बाय में मेरा क्या होगा, ग्रुप बाय में मेरा, हम किसको चाहते हैं, कैटेगरी वाइज चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कैटेगरी कर रहा हूँ, एवरेज प्राइस ले रहा हूँ, सेल्स में से ग्रुप बाय कर रहा हूँ कैटेगरी पे, और मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। अब ये मुझे बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एवरेज प्राइस है वो $599 है, और फर्नीचर का जो एवरेज प्राइस है वो 9, क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग भी करिएगा ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को आता है। अब मैं, एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड पर डे। अगर मैं कहूँ कि ऐसे भी तो क्वेश्चन बनते हैं ना कि हर दिन मेरा कितना, कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ, हर दिन मेरे पास कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे डेट्स ले लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास क्या था उसका नाम, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कॉलम्स का नाम क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉलम का नाम डालना होता है, उसका नाम क्या है, सेल्स डेट है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स डेट ले लूंगा, ठीक है। और
मुझे इसमें क्या करना है, मुझे काउंट करना है, ठीक है ना। क्या लिखा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि काउंट आपको करना है। काउंट किस चीज का, काउंट आप प्रोडक्ट का कर सकते हो इजीली, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही कह रहा है, या स्टार लगा दो, स्टार पे भी आपका आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेलेक्ट सेल्स डेट, काउंट, और आपको क्या चाहिए, पर डे का सेल्स चाहिए। तो इसमें कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, एलियास लगा दो, ठीक है ना। एलियास लगा दो कि हमारे पास नंबर प्रोडक्ट कर देते हैं, नंबर प्रोडक्ट कर देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ले लोगे फ्रॉम सेल्स में से, और ग्रुप बैक कर दोगे, ग्रुप बैक कर दोगे सेल्स डेट का, ठीक है ना। किसका करोगे, सेल्स डेट का करोगे। जो मेरे पास सेल्स डेट है हम उसका करेंगे, क्योंकि हमें डेट वाइज, ठीक है, चाहिए। अब देखो हर दिन मेरे पास कितना हुआ, देखो यहाँ पे एक क्यों आया है, आप देख रहोगे कोई भी डेट रिपीट नहीं हुई है, कोई भी डेट यहाँ पे रिपीट नहीं हुई है, आप देख रहे हो कोई भी डेट यहाँ पे रिपीट नहीं हुई, जिसकी वजह से हर डेट पे एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, मेरे पास ये जो सेल्स डेट है, ठीक है ना, मैं इसमें क्या करता हूं, अगर किसी भी एक डेट को, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, ऐसे मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई हो जाता है। किसी भी एक डेट को मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है ना, मैंने एक डेट को 7 कर देता हूँ, इसको भी मैं 7 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 3 डेट है इसके, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मैं वापस जाके देखता हूँ, अब मैं वापस जाके देखता हूँ, ठीक है ना, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, मैं देखता हूँ। अब मैं नीचे जब जाता हूँ तो मुझे, मेरे पास कितने, 7 अप्रैल को अब मेरे पास तीन तीन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देखो एक जगह, तो वैसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होते हैं, यहाँ देखो 7 तारीख को कितने सेल्स हुए हैं, 3 हुए हैं, 3 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। हर दिन एक ही प्रोडक्ट सेल हो रहा था, लेकिन 7 तारीख को कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, 3 सेल हो गए। ध्यान आ रहा है, इसका समझ में आया ये किस तरीके से हुआ है। ये पूछ रहा है कि आपके पास पर डे कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, हर दिन आप प्रोडक्ट देख लिए, हर दिन तो एक ही आ रहा था, क्योंकि आपके पास हर दिन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट डेट पे बिक रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, मैंने 7 तारीख को 3 प्रोडक्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे यार क्या कर रहा है, ये सिंटेक्स जो है आपको दिखा रहा है कि 7 तारीख को 3 प्रोडक्ट सेल हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाता है टोटल प्रोडक्ट आप इस तरीके से, ये हो गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है, इसमें एक और चीज होता है, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, एक वेयर क्लॉज होता है, WHERE वेयर क्लॉज आप डालते हो, और दूसरा होता है हैविंग क्लॉज, ठीक है ना, दो चीजें होती हैं। ग्रुप बाय पे, ठीक है, ग्रुप बाय करने के बाद, जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है ना, इसके बाद से आप वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, इसके आगे इधर इधर आप वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, ग्रुप बाय के बाद से वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते। वेयर क्लॉज अगर आपको लगाना है इसमें, तो आप वेयर क्लॉज इसके पहले ही लगा सकते हो, उसके बाद नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं वेयर क्लॉज लगा सकूं, तो आप वेयर की जगह आप हैविंग लगाओगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको कुछ करना हो तो आप हैविंग लगाओगे, एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक है ना, इस पे, तो वो सही रहेगा। तो उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, इसी टेबल में हो जाएगा, तो इसी टेबल में, अदरवाइज हम इसी में कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसी में करके देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक टेबल क्रिएट ही कर ले, मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल क्रिएट कर लेना हम लोग के लिए सबसे बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे टेबल, ध्यान रहे जब भी आप कुछ
रहे हो तो आपके पास कॉलम्स टेबल सबके नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वन। ठीक है ना, ये मेरा सेल्स, मैं इसको देखता हूँ। अब मेरे पास यहाँ देखो, मेरे पास क्या है, कैटेगरी और टोटल सेल्स है। कैटेगरी और टोटल सेल्स हमारे पास एक निकल के यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हैविंग और वेयर क्लॉज को यहाँ पे चेक करना है कि हम कहाँ पे हैविंग लगाएंगे और कहाँ पे हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। ठीक है, हैविंग क्लॉज कहाँ लगा सकते हैं और वेयर क्लॉज कहाँ लगा सकते हैं, उस चीज को यहाँ पे हम देखें। देखो आप, पहला हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वन वेयर टोटल सेल्स। ठीक है, ग्रेटर देन टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1000। ठीक है ना, टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1000, ये मैंने केवल इतना लगा रखा है, इतने पे चला गया। तो मेरे जितने भी 1000 से ज्यादा सेल्स हुए होंगे वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जहां पे टोटल 1000 से ऊपर सेल हुआ हो और उसके आगे भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है ना, अब इसके बाद से मैं इसमें ग्रुप बाय लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या होगा कि मेरे पास, अब यहाँ पे आप रन करते हैं। ठीक है ना, अब देखो, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि मैं उस टेबल की बात कर रहा हूँ, मेरा टेबल यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। मेरे पास ओरिजिनल टेबल में इतना चीज था, मेरे पास ओरिजिनल टेबल में कितना था, ये मेरे पास पूरा ओरिजिनल टेबल है, और यहाँ पे मेरे पास इतनी एंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, क्लॉथिंग है, सब चीज है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ना हजार हजार डॉलर के ऊपर का ही सेल हुआ हो, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास एक टेबल यहाँ निकल के आया जहाँ पे $1000 से ऊपर का सेल हो रखा है। ठीक है, आपने एक अलग टेबल बना रखी है, आप ध्यान दो, आपने एक अलग टेबल अब बना रखी है यहाँ पे जहाँ पे $1000 से ऊपर का सेल है। बाकी से आपको कोई मतलब नहीं, बाकी जितने भी हैं वो अलग हो चुके हैं। अब जब मैं ग्रुप बाय करूंगा तो सिर्फ इस टेबल पे ग्रुप बाय होगा। ये जो आपके पास एक टेबल यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ इस पे ग्रुप बाय होगा। इस पे मैंने ग्रुप बाय किया, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, और यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये भी मतलब हजार हजार वाले जितने भी हमारे सेल्स हुए थे ना, सिर्फ उनको कैटेगरी वाइज करके ये ग्रुप बैक कर रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे 1000 वाले से ऊपर के सेल्स हुए थे, सिर्फ उन पे ही वो ग्रुप बैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार एक और चीज देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया है, यहाँ पे हम स्टार नहीं लगाना चाहिए था। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी ले लेंगे। ठीक है, कैटेगरी ले लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स कर देंगे। क्योंकि जब भी हम ग्रुप बाय करेंगे तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, हम स्टार लगा के ग्रुप बाय नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल सेल्स है हमारे पास, तो हम टोटल सेल्स लिखेंगे। ठीक है, टोटल सेल्स। ठीक है, अब मैं इतने को केवल पहले करता हूँ। ठीक है ना, इतना इतना पहले नहीं होगा अब। ठीक है, मेरे पास क्या है, कैटेगरी है, सम ऑफ टोटल सेल्स है, कहाँ से ले रहा हूं मैं, सेल्स वन से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जब मैं लूंगा तो मेरे पास कुछ कुछ डेटा आएगा, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास हजार मेरे पास क्या हुआ, टोटल सेल्स आ गया कैटेगरी वाइज। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1000 से ऊपर होना चाहिए, तो मैं 1000 से ऊपर वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वाला आता है। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डाल देता हूँ, तो मेरे पास कैटेगरी वाइज जो टोटल सेल्स हुए हैं और जो इसमें हजार हजार डॉलर से ऊपर सेल्स हुए हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरा कॉलम क्या है, कैटेगरी। मैं इसको नहीं लूंगा तो मेरे पास केवल टोटल सेल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एलियास ले लेता हूँ टोटल सेल्स। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, और भी चीजें हैं हमारे पास कैटेगरी में। यहाँ पे मैं फिर से स्टार्टिंग से यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैटेगरी है। इस कैटेगरी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, क्लॉथिंग है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं, और कुछ चीजें जो है मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं। ठीक है, यानी कि मैं कैटेगरी पे ग्रुप बाय आराम से कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी पे ग्रुप बाय कर लिया। लास्ट में मैंने क्या किया, कैटेगरी पे ग्रुप बाय किया मैंने, यानी कि मुझे कैटेगरी पे ग्रुप बाय जब करूंगा तो उसके थ्रू मुझे टोटल सेल्स निकल के, मतलब जो भी एवरेज लेना है, टोटल सेल्स लेना है, सम लेना है, कुछ भी लेना है, वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मैं मेरे पास एक और कंडीशन, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जहां पे मेरे पास
$1000 से ऊपर का सेल हुआ है, उससे नीचे वाले पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फिल्टर लगा दिया है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जहाँ पे ओवरऑल 1000 से ऊपर का सेल हुआ है और उसके उस पे जो मुझे निकल के आता है, वहां पे मैं $1000 से ऊपर जहां सेल्स निकल के आता है, वहां पे मैं सिर्फ ग्रुप बाय कर रहा हूँ और कहीं मैं ग्रुप बाय नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जब रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो, आपने जब ग्रुप बाय किया तो आपकी एक कैटेगरी गायब हो गई है क्लॉथिंग की। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे $1000 से ऊपर का सेल हुआ ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ, वहां पे $1000 से ऊपर का सेल क्लॉथिंग में कहीं हुआ ही नहीं है। अब देखो, 750 का ही सेल हुआ, 850 का ही सेल हुआ, ठीक है। क्लॉथिंग में 950 का ही सेल हुआ, $1000 से यहाँ पे सेल हुआ ही नहीं है। आप समझ रहे हो, मैंने एक टेबल बनाया जहां पे $1000 से ऊपर का जो सेल हो रहा है उसको एक अलग कर लिया और उस टेबल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने उसके अलावा और कहीं कुछ ऑपरेट नहीं किया है। मैं सिंपली वहां ऑपरेट कर रहा हूँ जहां मुझे $1000 से ऊपर का सेल मिला है। चीज आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ। हेलो संदीप, नहीं अंकुर, अगस्टिन, नहीं अंकुर, नहीं, नहीं अंकुर, ठीक है। तो सही है। संदीप आप लोग आ रहा है, मतलब हाँ ये जी, हाँ जी। वेयर क्लॉज पहले लगा ना, यहाँ पे जो वेयर क्लॉज पहले लगा है, इसने एक कंडीशन डाल दी है कि आप सिर्फ टेबल में उस डेटा की बात करो जहाँ पे $1000 से ऊपर का सेल हुआ है, उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब उससे नीचे अगर कहीं कुछ सेल हुआ है तो उसे कंसीडर ही मत करो। जैसे मैं कहता हूँ, आप क्या करते हो, आपके आपके पास एक दुकान है, ठीक है। उस दुकान में आप कपड़े भी रखते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान भी रखते हो और आप फर्नीचर भी वहां रखते हो। मतलब एक मॉल समझ जाओ, आपके पास एक शॉपिंग मॉल है, वहां पे फर्नीचर भी है और क्लॉथिंग भी है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अब आप कहते हो कि मैं चाहता हूँ ना कि जहाँ पे $1000 से ऊपर का मेरे पास सेल नहीं हो रहा है ना, मैं उस पर एनालाइज ही नहीं करना चाहता हूँ। आप समझो, मैं एनालाइज ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बैक के पहले क्या किया है, एक वेयर कंडीशन डाल दिया है। अब ये क्या करता है, मेरा जो टेबल है उस टेबल से सिर्फ उस प्रोडक्ट को उठाता है, उस कैटेगरी को उठाता है जहां पे मेरे पास जो सेल हुआ है वो $1000 से ऊपर का हुआ है। उससे उसके नीचे वाले सेल को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है, उसको हटा दिया है उसने। उसने बोला नहीं, मुझे तो मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है ना। ये ग्रुप बाय के पहले ऑपरेशन हो रहा है, आप ध्यान देना। ग्रुप बाय के पहले लगा है और उसके पहले ही ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे टोटल सेल्स पे $1000 का लगा दिया कि मेरे पास $1000, जिस 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 जहां जहां पे आपकी सेल 1000 से ऊपर हुई है, सिर्फ उसको आपने अलग कर लिया, उसके बाद को आपने छोड़ दिया है। अब देखो, अब उसने क्या किया, एक वर्चुअल टेबल बना लिया जहां पे $1000 से ऊपर का सेल हुआ है और उस पे उसने ग्रुप बैक कर दिया, ठीक है ना। एक और कंडीशन आती है, आप आपने ये वो काम किया है जहां पे आप नहीं चाहते हो, जहां पे $1000 से ऊपर का सेल नहीं हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं, अब एक ग्रुप बाय और लगाते हैं, एक ग्रुप बाय और लगाते हैं। सेम ग्रुप बाय, लगभग लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। सेलेक्ट, मैं यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ टोटल सेल्स लेता हूँ, टोटल सेल्स लेता हूँ, टोटल सेल्स लेता हूँ, ठीक है। एज टोटल सेल्स, इसको भी मैं टोटल सेल्स ही कहता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो टेबल है वो है सेल्स 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रुप बैक करूंगा, यहाँ पे तुरंत मैं ग्रुप बैक करूंगा कैटेगरी पे। जब मैं यहाँ पे ग्रुप बैक करूंगा तो अब देखो, आपके हर एक जितनी कैटेगरी थी ना, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। हर एक कैटेगरी के टोटल सेल्स आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना हुआ, फर्नीचर में कितना हुआ, क्लॉथिंग में कितना हुआ। तो मैंने क्या लिया, कैटेगरी लिया, कैटेगरी लिया, टोटल सेल्स लिया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टोटल सेल्स क्या है, ये टोटल सेल्स है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कहाँ से, किस टेबल से, मैंने इस टेबल से लिया तो मेरा वो टेबल आ गया। मैं ग्रुप बैक किस पे कर रहा हूँ, कैटेगरी पे कर रहा हूँ। तो मैंने कैटेगरी पे जब टोटल ग्रुप बैक किया तो मुझे टोटल सेल्स हर एक कैटेगरी पे मुझे टोटल सेल्स मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं टोटल सेल्स चाहता हूँ, जो मेरा टोटल सेल्स है, ठीक है, जो मेरा टोटल सेल्स है, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ उसको चाहता हूँ जहां मेरे पास $3000 से ऊपर का सेल हुआ है, सिर्फ मैं उसको चाहता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं चाहता, ठीक है ना, किसी को नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, आप जब इसको करोगे ना तो ये
इसको ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, आपको ये जो क्लॉज था ना, इसी क्लॉज को यहाँ पे वापस लेके आना होगा। इसी क्लॉज को आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल सेल्स को, सम ऑफ टोटल सेल्स को। अब आप जब इसको रन करोगे, आप बताओगे यहाँ पे एक कैटेगरी आपकी वापस चली गई है। आपने ध्यान दिया, आपकी एक कैटेगरी चली गई है, आपकी क्लॉथिंग चली गई है, ठीक है ना। फिर से देख लो, फिर से देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, इसने बताया मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और क्लॉथिंग में कितने सेल हुए हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं उस डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ जहां पे मेरा सेल जो है, जो सेल ओवरऑल जो सेल हुआ है वो $2500 $3000 से ज्यादा का सेल हुआ है, मैं उसी को करना चाहता हूँ, उसके पहले वाले को नहीं करना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपने हैविंग क्लॉज लगाया, आपके पास ये क्लॉथिंग पूरे के खत्म। दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया, हैविंग और वेयर में आपको समझ में आया। कोई बताएगा, किसी का ध्यान गया हो इस चीज पे कि हैविंग और वेयर कंडीशन में क्या अंतर है, कोई मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा तो उसको ये चीज पता चल के आएगी। वेयर तो ऐसे लग रहा है जैसे फिल्टर लगा रहे हैं हम किसी चीज पे। नहीं, फिल्टर ये भी है, फिल्टर दोनों है, दोनों फिल्टर है, लेकिन अंतर क्या है, दोनों फिल्टर में अंतर क्या है। विश्वजीत, जस्टिन, आप लोग बताओ कि दोनों फिल्टर में अंतर क्या है। दोनों फिल्टर में ना एक अंतर है जो आपको हमेशा याद रहेगा, आप उसको समझ लोगे तो ये खुद आपको सोचने वाली बात है, कहीं आपको पढ़ने पे नहीं मिलेगा, ये आदमी खुद रियलाइज करता है कि हाँ ये चीज है। देखो, वेयर कंडीशन आप तब लगाते हो जब आपके पास एक टेबल पहले से पड़ी हुई है, ठीक है ना। आपके पास ये टेबल पहले से है, ये टेबल आपके पास पहले से है, इस टेबल में आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो। मैं कहता हूं वेयर कंडीशन लगाना, आप जब आपके पास वो टेबल ही नहीं है तो वेयर कंडीशन लगाओगे कैसे, आपके पास तो टेबल है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक हैविंग क्लॉज दिया कि आप जब डेटा मैनिपुलेट करके एक वर्चुअल टेबल या एक जब टेबल मैनिपुलेशन के बाद जब बन के आती है, उस टेबल पे आप जब कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो तो जाके आप हैविंग क्लॉज लगाओगे, ठीक है ना। मतलब आपके पहले वेयर कंडीशन जब आपने लगाया तो आपने डेटा में कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया था, आपका एज इट इज डेटा है, आपने $1000 से क्या किया, कैटेगरी पे लगा दिया। अब वो देखता है कि मेरे पास रोज देखता जाता है और देखता है कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग कॉलम, एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उस टेबल में मेरे पास 1000 कहाँ है, उससे ऊपर वाले को रख लेता है, नीचे वाले को हटा देता है। लेकिन जब वो ग्रुप बैक करता है तो उसके पास वो टेबल थी ही नहीं, पहले तो टेबल थी ही नहीं, ग्रुप बैक करने के बाद उसके पास एक और टेबल आती है। मैंने जब यहाँ ग्रुप बैक किया तो मुझे एक और टेबल यहाँ दिखाई देती है, कैटेगरी और टोटल सेल्स करके जो दो कॉलम है, यहाँ पे मुझे एक टेबल दिखाई देती है। लेकिन ये टेबल वर्चुअल टेबल है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। ये टेबल आपकी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन आप फिर भी इस पे फिल्टर लगाना चाहते हो, इसलिए इसने किया कि आप क्या करो, अगर इस पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो ग्रुप बैक के बाद हैविंग क्लॉज लगा दो। अब इस टेबल पे ये हैविंग क्लॉज काम करता है, और जब मैंने 3000 से ऊपर किया तो ये 2500 वाला जो है वो हट गया। आप देख रहे हो, क्योंकि ये 3000 से कम है, इसलिए जब मैंने इस पे जब ओवरऑल किया, ये 3000 से नीचे है, इसलिए क्या होगा, ये हट जाएगा। आप देखो यहाँ, ये हट गया। अब समझ में आया वेयर क्लॉज और हैविंग में अंतर, या समझ में आ गया ना सर, दोनों लोगों, सभी लोगों, तीनों लोगों को एकदम अच्छे हाँ से जी, समझ हाँ में आ जी गया ये अंकुर चीज। जी, आप समझ में ये आ बड़ा गया। इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यू में हाँ जाओगे ना जी। तो वो आपके इस स्किल को देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आपको ये नहीं चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप किसी तरीके से सॉल्व कर दिया, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो उसको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। वो चाहता है कि आपको अंतर पता हो कि ग्रुप बाय और वेयर कहाँ लगाते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप वहां पे आंसर कर पाओगे, है ना। आप रट्टा मार लोगे कि नहीं, क्या होता है, ग्रुप बाय के बाद अगर लगाना है तो हैविंग लगा देंगे, ग्रुप बाय के पहले लगाना है तो वेयर लगा देंगे, ये आपने रट्टा मार लिया है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये आपकी कॉन्सेप्ट में आती है, ये आपका हो गया। ये आपका पूरा ग्रुप बाय फंक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए और हमने उसके लॉजिक को भी समझा, किस तरीके से उसके लॉजिक्स काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से वापस पूछें, ठीक है। तो ये हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है ना।